So tell me before start, what is cyber law? You have any idea regarding these, any kind of information? Because we all are in digital era, right? Since 2016, 17, maybe before, because IT Act comes in 2000. Okay, Information Technology Act. So tell me about cyber law, how we use it, what is the benefits. Do you feel like that cyber law is good? What kind of advantages and disadvantages? Anyone? Or tell me the meaning. Yes, come on, speak up. Don't keep quiet. Yes. आपकी यही प्रॉब्लम है, आप बोलते नहीं हो ना, इसलिए काम ही नहीं होता है. गलत बोलो, कुछ भी, लेकिन बोलो. कम ऑन. Yes, ma'am. Cyber law. Ma'am, Neha here. Yes, ma'am. According to me, I think it's just a legal term which under the cyber law, the people can use. The basic is the legal term which can be used, or I think we can describe as a legal issues related to use of the communication and technology or cyberspace, like that. I mean, I am not aware about you much. But correct. Definitely, you're going correct. Any kind of issue or some kind of fraud happened with you, Neha? Yes. So on that time, what you feel? Do you use cyber law, or have you registered any complaints to use this cyber space or cyber law? No, so far I didn't come across, but I have heard from many friends that just because of maybe, I mean, due to some fraud, they have done this. I think the legal recognition for electronic document or digital signature, right? This is helping. I mean, cyber law is helping, right, to providing. Yes. And also it helps for the online business also, right? Of course, everything, everywhere, any kind, every time. And all of you, I don't know how many of you know, but when cyber crime comes in India and all over the world, so fraud becomes less, है ना, बहुत कम होने लगे हैं. बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करना चालू कर दिया है अभी. So we can easily find out the fraud. Got it? तो भी हम लोग बोलते हैं ना कि अगर अच्छा है तो बुरा भी है ना, जहाँ पे अच्छा ही है वहां बुराई तो होती ही है. तो 100% people not choose good thing, right? 25 to 30% people are using bad things, always duplicates, right? So anyone आप में से कोई है जिसने मतलब जो इसमें फंस गया है, या फिर कोई किसी के कलीग के साथ या कुछ हुआ है तो उसने कंप्लेंट किया तो उसको क्या बेनिफिट्स हुआ? यस, एनीवन? बोलो. ओंकार, चैतन्य. यस, कम ऑन. बोला चैतन्य. आप लोगों को पता है अभी आजकल ना ये बहुत आता है, ऑनलाइन जॉब ऑफर, पार्ट टाइम जॉब ऑफर, है ना. वो लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, बोलते हैं कि आप इतना पैसा भरो फिर हम आपको ऑफर करेंगे. फिर लोग क्या करते हैं कि यार जॉब नहीं है, जॉबलेस है, तो भर भी देते हैं, बट रियली समटाइम्स इट्स अ फेक. ठीक है, तो आप अगर चेक करेंगे तो उसका वेबसाइट भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है. ऐसे बहुत सारे आपके इसमें भी आता है, फैशंस में भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो अपने को मतलब हम लोग को अच्छे अच्छे क्लोथ्स दिखाते हैं, लोग सिलेक्ट करते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, और महीना हो गया, 2 महीना हो गया, डिलीवरी नहीं.
फिर हम लोग चेक करते हैं वहां पे तो वेबसाइट ही नहीं है, वेबसाइट में नंबर ही कुछ गलत दिया हुआ है ना। या फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम आपको बताते हैं, वैसा वैसा पेमेंट करो, और अपने अकाउंट में से पूरा पैसा चला जाता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है फ्रॉड? सबके साथ हुआ है क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ तो किया है आप लोगों ने भी, भले ही आपने कंप्लेंट नहीं की हो या भले ही आपने, लेकिन सम काइंड्स ऑफ इश्यूज हैपन विथ यू, आई थिंक। यस, हुआ है कि नहीं हुआ है? या फिर किसी के माइंड में ऐसा रहता है कि नहीं यार ये तो गलत ही है, हम लोग करना ही नहीं, कोई मतलब कितने भी मैसेज आए तो हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, है ना? Ma'am, Neha here. हम्म। Ma'am, I'll share one example, but I'm not sure if it is related to this because I have never filed a complaint. But I mean, through our debit or credit card, we can consider for this example. Some money was deducted in euro, and I got a message. And Yes, in the yes, morning, yes, yeah, yes. in the It morning comes as 5 well. a.m. Yes. Yeah, in the morning 5 a.m. And then I think around 7 a.m. I checked the message and I thought I have not used this amount. And why I am getting, I mean, this kind of message, I think I got 3 times. Then by 8 a.m., then 9 a.m. Then I connected with the bank over the, I mean, through customer care, I connected with them. And I found that this is fraud, which had happened with me. And then the bank, took the responsibility, and they said if this is the fraud, they are going to find out the solution on the same, because the money was deducted from my account and it was around 2,500 in INR. But it was deducted in euro. And the person who have used it, it has been used via online method through Skype login ID that was found through bank. So I was like, I have not used Skype my account for any transaction or anything. So we were not aware. Even the bank was not able to find out the exactly reason behind how the person have used my account using via Skype. However, I saved my money, and the bank helped me a lot in that case. And after 1 week, I think I got my money back in my account. Good. So after that, I think I am more careful about this. Absolutely. You know, every time bank send us alert messages. Exactly. Yeah. Right? Don't share your OTP, your PIN number, your ATM number to anyone, because bank never ask for the OTP. Ask for it. So I think the best lesson which I have learned in this from this case is we should not panic. And if we, like I have seen this message in the morning 7, and then I was in hurry because it was the case was happened before lockdown. So I was in a hurry and I was just moving to my office. And then instead of anything, that's a good thing, Neha. Yeah. You should contact within a 24 hours. After 24 Yes. hours, So I got connected don't with do anything else. Yes. Yes. So sometimes in urgency, maybe we ignore the message from bank, or maybe we think, okay, we will check it later. So we should not ignore any message from the bank. Exactly. And you use your presence of mind. You just contact with bank and tell them everything. So it is easily to get your money back. Otherwise, it's impossible. Same thing happened with my friend in the evening. Idea, you know, the mobile company. So my friend has correlated with that company, Idea. And at the time of 1 p.m. at night, okay, am. So what happened now? His mobile is switched off. I don't know how. He told me regarding that mobile switch off, but the Idea company checked that some kind of transaction had been done that particular person, and the number of that person is he know very well, because he's friend. Okay, so he checked it and he called him, but what happened? His number is switch off. So he called him again and again, and he just put the message that that kind of transaction has been done in your account. Please check it and please go went to bank and all. So the person woke up in the early in the morning 4 a.m. and he checked his open
his mobile. Actually, he also worried ki how his mobile was switched off. He also don't know about it. So, and within a 6 early morning, he got a message that imagine नहीं करोगे 7 लाख रुपीज ओके डिडक्टेड बिकॉज बिजनेस अकाउंट था तो बिजनेस में से 7 लाख एंड उसको एकदम रोना आ गया. ही कॉल्ड मी अर्ली इन द मॉर्निंग कि हर्षाली द थिंग इज हैपेंड विथ मी, क्या करूं मैं अभी. so that time I was working in Mumbai court. So he said कि क्या करूं मैं. तो I am just suggesting go to near your bank and this is the SBI bank. So I just suggest him just woke up and go to the nearby SBI bank because the transaction has been done only 6 or 7 hours. He went वो मैनेजर के यहाँ गया. मैनेजर बोला कि नहीं बाबा मैं 10 के पहले तो बैंक ओपन नहीं कर सकता, उसके पहले कुछ हो नहीं सकता. तो फिर वो दिन भर की ये करके फिर वो 10 बजे गया वहां पे बैंक में. देखा तो उसका जो पैसा था ना 7 लाख रुपए, वो कोई यूपी का कोई गांव था, वहां पे वो उसके बैंक में चला गया था. लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि 24 आवर्स नहीं, वो रात का ट्रांजैक्शन था ना. वो तो बैंक ओपन करेगी, ट्रांजैक्शन करेंगे, तब जाके उसके अकाउंट में जाएगा. तब जाके बैंक ने वो साइबर क्राइम वगैरह किया, इसने कंप्लेंट वगैरह की उतने में, और फिर जाके उन्होंने वो पैसा उसके अकाउंट में वापस डाला. तो ये क्यों हुआ पता है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? एनीवन गेस? सिंपल है. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है. हम लोग जितने भी हमें मैसेजेस आते हैं ना, हम लोग ना लिंक ओपन करते रहते हैं, ठीक है. तो उसमें हमारे मोबाइल्स में हम लोग हमारे सारे डिटेल्स रखते हैं, हमारे पैन कार्ड रखते हैं, हम हमारा आधार कार्ड रखते हैं, एवरीथिंग हम लोग ये सारी चीजें रखते हैं. तो आपका मोबाइल कोई भी कभी भी, अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं है ना, हम लोग डिजिटल इरा पे हमारे सेशंस ले रहे हैं, तो अभी भी हमारी बातें कोई ना कोई सुन रहा है. व्हाट इट, हम जब मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं मोबाइल और आप दोनों या आप जिससे बात कर रहे हो वही है. नहीं, हमारे आजू बाजू में भी हमारी बातें कोई सुन रहा होता है. वी आर नॉट सिक्योर. तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ. वो हमेशा कुछ ना कुछ लिंक ओपन करता रहा, उसके डिटेल्स किसी को चले गए कोई ना कोई लिंक के थ्रू. वो उसने हैक किया उसका मोबाइल, इसलिए उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और उतने देर में उसने वो फटाफट ट्रांजैक्शंस भी कर लिए. तो बी केयरफुल अबाउट इट. कोई भी लिंक, कोई भी मैसेज आते हैं तो आपको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है. बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं मैडम आपका ओटीपी दीजिए, हम आपको ये करेंगे. नहीं, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड ओटीपी आपको किसी को भी शेयर नहीं करने हैं, किसी को भी नहीं, कोई हालत में नहीं. हाँ, आप उसको बोलो कि बाबा तुम्हारे डिटेल दो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूं, लेकिन ओटीपी मैं कभी शेयर नहीं करूँ. तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं जो, लेकिन ये एक अच्छा है कि साइबर लॉ का उन्होंने सिक्योरिटी ऐसी रखी है कि जो भी पैसा ट्रांसफर करेगा उसको 24 आवर्स दिए हैं. अगर आपने 24 आवर्स के अंदर कंप्लेंट कर दिया तो आपके 100% चांस है रिकवरी के, अदरवाइज उसकी रिकवरी नहीं होती. ये कब हुआ? ये 2016-17 से स्टार्ट हुआ. पहले क्या होता था कि लोग फेसबुक के थ्रू, इसके उसके थ्रू, इससे उससे पैसा लेके ये वो मांगते थे और उसको हम लोग सारी डिटेल्स दे देते थे और वो अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करता था. लेकिन अभी वैसा नहीं होता है, ठीक है. एक मेरी फ्रेंड है, वो गुजरात में रहती है, तो उसको उसके किसी फ्रेंड ने फॉरेन से कोई गिफ्ट भेजा, ठीक है. उसने बोला कि नहीं ये गिफ्ट है, तुम रख लो, तुम्हें चाहिए. और जब वो गिफ्ट आया तो उसने मतलब उसको फोन आया कि तुम्हें 50,000 पे करने हैं, तभी ये गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है. तो उसने मुझे फोन किया कि यार इसका मुझे गिफ्ट आया है. मैंने कोई भी गिफ्ट में पैसे थोड़ी ना देने पड़ते हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या तो तुम भेजने वाले को फोन करो. तो ये उसको फोन लगा रही है लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा, उसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है. समझ में आया? तो ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे काम आप बिल्कुल मत करिए. अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत साइबर लॉ से कनेक्ट कीजिए. आपको अगर हुआ भी है ऐसा कुछ ट्रांजैक्शंस तो आपको उसका बेनिफिट या जो भी है रिफंड मिलता ही है. यस, एनीवन, किसी के पास और कोई ट्रांजैक्शंस या और कोई कुछ है जो शेयर करना चाहता हो रिगार्डिंग साइबर लॉ? और किसी के साथ कुछ हुआ है ऐसा ऑनलाइन? अभी तो ऑनलाइन हो गया है, इसमें तो बहुत कुछ होता ही है, इसलिए आप सारी चीजों को अपडेट रखिए, किसी को भी शेयर मत करिए. यस हर्षल, डू यू हैव एनी एग्जांपल रिगार्डिंग दिस? नेहा ने तो बता दिया. चलो निकिता, ओंकार, चैतन्य, कोमल,
प्रतीक्षा, शुभदा, मयूरा, दीपाली, रूपाली, नो आइडिया अबाउट इट। एन नंबर ऑफ है, बहुत सारे। ऑनलाइन बिजनेस में भी होता है। और आपने ये देखा है ट्रैफिक सिग्नल्स, है ना, अभी तो सब डिजिटलाइजेशन कर दिया, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने डिटेल्स किसी को शेयर नहीं करने हैं, है ना। तो अभी ट्रैफिक सिग्नल में भी वैसे ही हो गया है, सारे कैमरेज लगा के रखे हैं एवरीवेयर, तो आप ये हो ही नहीं सकते, मतलब इजीली आप पकड़े जा सकते हो इजीली। तो अभी बहुत कम हो गया है, करने वाले तो कर ही रहे हैं, बट बहुत कम हो गया है साइबर की वजह से, बहुत एन नंबर ऑफ फ्रॉड। चलिए हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन। सबको दिख रहा है? यस और नो? यस मैम। ओके, so this is your cyber law subject, इंटरनल सब्जेक्ट है, ये यूनिवर्सिटी लेवल का 2 क्रेडिट्स है। आई होप कि आपने सीसीएस भी आपके सारे अपलोड हो चुके हैं, आप लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो साइबर लॉ में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आपका यूनिट 1 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। आईटी एक्ट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हम उसमें देखने वाले, इवोल्यूशन कैसे आया आईटी एक्ट, क्यों उसकी नीड थी, उसके फीचर्स क्या है, उसमें क्या क्या अथॉरिटीज आती है, क्या पावर्स आते हैं, क्या फ्रॉड्स फंक्शंस है उसमें, उसमें कितने ऑफेंसेस है, कितनी पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, अमेंडमेंट्स क्या हो सकती है उसमें, देन उसका जुरिस्डिक्शंस क्या है, कितना उसमें पनिशमेंट्स है, ये सब उसमें देखेंगे। तो रिगार्डिंग दैट, व्हाट इज आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मींस व्हाट, the IT Act provides ways to deal with cyber crimes, right? Any kind of crime, okay, fraud, it's crime. So it also known as cyber law. Deal मतलब जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी क्राइम हुआ है साइबर से रिलेटेड, उसको यहाँ पे डील किया जाता है, उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है विद इन 7 to 8 days में, right? So it is a generic term so which denotes all aspects, issues and the legal consequences on the internet, the world wide web and cyber space all over world। कहीं पे भी आपका गया होगा तो 100% उसका रिटर्न मिलेगा, अगर आपने ऑन टाइम पे उसका कंप्लेंट किया हो तो, अदरवाइज नो आइडिया। तो साइबर क्राइम इस तरह से होते हैं, हाइक करते हैं अकाउंट्स को, आपने थोड़ा भी डिटेल्स, आपका पिन नंबर, ओटीपी नंबर, कुछ भी, क्रेडिट कार्ड में भी बहुत होता है ऐसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंक भी फ्रॉड करती है, करती होगी, आई डोंट नो, बट होता है, ठीक है। सो डेली इसके लिए आपको अवेयर होना है, आपको पता होना है कि आप क्या कर रहे हैं, किसे दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है। सो you should know about it, you should aware about it. So crime, what it is, a generalized definition of cybercrime may be unlawful acts wherein the computer is either a tool or target or both। अभी तो हम लोग सब फोन यूज करते हैं, टैब यूज करते हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग इतना घाई में रहते हैं, इतना कि बस हाँ फटाफट पे, गूगल पे वी हैव, और हम सोचते नहीं, किसी ने दे दो तो हम लोग पे करते हैं। और आजकल ये चल रहा है, जब से लॉकडाउन हुआ है ये सारी चीजें बहुत हो रही है। सो ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, बट उसे यूज करिए, उसे पढ़िए, हर इंस्ट्रक्शंस पढ़िए आप, उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शंस करिए। सो साइबर क्राइम एज एक्ट्स दैट आर पनिशेबल बाय द आईटी एक्ट। अगर आईटी एक्ट आपको पता है और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, सो cyber law helps you to recover your fraud or your amount। अगर आपने
category of cyber crime. What kind of category is the computer as a target or the computer as a weapon? या तो उन्होंने आपको टारगेट करके रखा है, या फिर कोई है ऐसा बंदा आपके आसपास जिसको पता है कि इसका आईडी पासवर्ड क्या है, इसके अकाउंट में कैसा कितना पैसा है, वही जाके आपके साथ कर सकता है। हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे रॉबरी के केसेस देखते हैं, इसके घर से इतना सोना गायब, तो ये कौन होता है? उनके घर का आदमी होता है या ऐसा कोई पर्सन होता है जो उसे 24 आवर वॉच कर रहा हो। अभी इतनी बड़ी सोसाइटी होती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो इतने लोग के यहाँ पे सबका होता है क्या फ्रॉड? किसी एक के यहाँ होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि उसे पता होता है इसका क्या फ्रॉड है, मतलब उसे। इसलिए आपको भी बोलती हूँ, चाहे अपने कलीग से क्यों ना हो, किसी को भी अपने ये सारी चीजें आपने शेयर नहीं करनी है। सो द कंप्यूटर एज अ वेपन, या फिर कोई लोग कंप्यूटर को वेपन की तरह यूज करते हैं, जैसे हाईजैक करना, इसका उसका ढूंढना। कोई लोग बहुत करामती होते हैं, उनको काम नहीं आता है तो वो लोग बस यही करते हैं, है ना, कि कंप्यूटर को यूज करके ये नंबर डाल, ये पिन डाल, ये कर वो करके उसे हैक करने की कोशिश करते हैं। सो द कंप्यूटर एज अ टारगेट में क्या आता है? हैकिंग, हैक करना, वायरस, वॉर्म अटैक्स। लास्ट टाइम भी हमें पहले बहुत सारे मैसेज आते थे कि ये वायरस आ गया है, ये वायरस के थ्रू मतलब आपके सॉफ्टवेयर हैक हो रहे हैं, आपके फोन हैक हो रहे हैं। बीच बीच में फेसबुक में भी आया था कि कोई, ठीक है। सो वो लोग तो 100 लोग आते हैं, तो 100 में से 100 लोग नहीं पकड़े जाते, कोई तो भी एक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसको जानता है, उसके बारे में सारी जानने की कोशिश करता है, उसके पास सारी डिटेल्स होते हैं, तभी उसका। सभी लोग कोई तो मिल ही जाता है उनको, कितना भी पढ़ा लिखा कोई तो उनको मिल। Now the computer as a weapon, what it is? Cyber terrorism, credit card frauds, pornography, etc. या फिर ब्लैकमेल के थ्रू है। अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरे साथ पैसा करूंगा, या फिर मैं ये करूंगा। वेब यूज करके क्राइम करते हैं, या फिर सीधा किसी को टारगेट करते हैं, तो ये फ्रॉड होते हैं। जैसे छोटे बच्चों को डर, वो बेचारे डरते हैं, तो उनको भी हम मतलब ये लोग क्या करते हैं, उनके साथ भी थोड़ा बहुत क्राइम करने की कोशिश करते हैं, उनको भी थोड़ा क्या करते हैं, हैक करते हैं, है ना। लास्ट टाइम जैसे मुंबई इसमें वगैरह बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, दिन में सारे मतलब जो पीपल्स होते हैं वो अनवांटेड होते हैं। मैं तो हमेशा मतलब मैं जब मुंबई में थी तो मैं हार्बर लाइन से अप डाउन किया करती थी, तो वहां पे मुझे ना एक पोल था रेलवे स्टेशन पे, हर वीक में मुझे 4 नए पोस्टर्स दिखते थे कि अनवांटेड, इफ यू फाइंड प्लीज कॉन्टेक्ट दिस नंबर। मीन्स मुझे आश्चर्य लगता था कि इतने पढ़े लिखे लोग भी हैक हो सकते हैं, ठीक है। तो वेपन एज अ वेपन, मतलब कोई भी ठग जाता है। सो बी अवेयर एनी टाइम, गॉट इट। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका कलीग भी हो सकता है आपको ये करने के लिए। हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे केसेस कि मतलब ऐसे कुछ भी कर लेते हैं, है ना। और हम लोग अपना फैमिली मेंबर है या फिर हमारा कलीग है, हमारा दोस्त है, ऐसा छोड़ के या बोल के हम लोग बोलते नहीं यार इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, जाने दो, बट नहीं, दैट इज बैड थिंग, राइट। सो द लिस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स में क्या क्या आता है? एक तो साइबर टेररिज्म आता है ना, वो मतलब क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट में जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, इन्होंने गवर्नमेंट मतलब पैसा खा के पब्लिक का पैसा मतलब क्या किया है, फ्रॉड किया है। सो साइबर टेररिज्म, सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स होते हैं ना पेपर पब्लिश्ड, वो क्या होते हैं, इलीगल, मतलब रिपीटेशंस, कॉपी और वो पेटेंट वगैरह का होता है, उसमें भी बहुत क्राइम होते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ क्राइम्स होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में या फिर सिंगर्स जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर ट्यून बनती है तो उसका तुरंत कॉपीराइट ले लेती है या फिर उसका पेटेंट ले लेती है, ताकि वो सेम अगेन कोई ये ना करे। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में सेम ट्यून के सेम इसके गाने बजते रहते हैं, कोई ना कोई वॉइस मिक्स करके या उसमें भजन वजन बना के वो गाते ही है
है ना, तो n number of people used this. So sale of illegal articles, illegal films, illegal tunes. तो आजकल, पहले तो भी जब हम फिल्म्स देखते थे तो समथिंग कुछ न्यू दिखता था उसमें, या प्लेस या सिटीज या समथिंग कुछ, या अभी तो सब में सेम रहता है, कुछ एक आध ही नया सा देखने को मिलता है, या तो जो पर्सनालिटी होती है वो कुछ टिपिकल न्यू होती है, अदरवाइज सेम थिंग ही रहता है. सो फिशिंग भी एक बहुत बड़ा क्राइम है ना. देन ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत सारे करते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग तो लॉट ऑफ पीपल, पबजी पे बहुत सारा इतना लगा ये होगा. सो वो तो ठीक है, उसको गवर्नमेंट को पैसा भी मिलता है उससे, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा टैक्स पे है. विजय माल्या तो कितना भरता था. सो साइबर पोर्नोग्राफी, ये भी आपको पता है क्या होता है ना, ब्लैकमेल के थ्रू, यार देख मेरे पास तेरा क्लिप है, मेरे पास तेरा वीडियो है, अगर नहीं दिया तूने तो मैं तुझे तो ब्लैकमेलिंग. ओके, सो दैट इज द थिंग. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, ये भी आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स की, भाई मैंने कोई चीज बनाई, उसमें मैंने पेटेंट लिया, लेकिन किसी ने चुरा के उसको अपने नाम का कर दिया. ये तो 100 फिल्म इंडस्ट्रीज में वगैरह बहुत होता है, ये एजुकेशन में भी बहुत होता है, ये किसी ने बनाया हो, अपना नाम चिपका के उसने अपना नाम लगा दिया. सो आईपीआर में भी ये देखने को मिलता है, ईमेल स्पिंग में भी देखने को मिलता है, आपने चेक किया होगा. देन फॉर्जरी है, ईमेल बॉम्बिंग है, वेब चैकिंग है, थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू इधर से उधर पैसा निकालना, ये वो हमने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी है. वो देखो प्लान आउट करते हैं, सब ये दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर वो डायमंड चुराना है तो कैसे कैसे प्लान करना है, कहाँ से जाना है, क्या नहीं करना है, पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं उस चीज का, और उसी को फॉलो करते हैं. हमने बहुत सारी ऐसी फिल्म देखी है ना. टैक्स के बारे में भी क्या हुआ था, वॉर चल रहा है, वैसा ही चल रहा है. अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है वायरस वॉर्म अटैक्स, अभी कोरोना तो आ ही गया है ना, वो भी एक वायरस ही था. देन बैंकिंग क्रेडिट क्राइम्स है, तो वी शुड अवेयर अबाउट इट. कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हमें अवेयर रहना है, हमारा दिमाग यूज करना है कि ये ट्रू है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट वी टेक अ डिसीजंस रिगार्डिंग दिस एंड सॉल्व. सो ये जो लिस्ट है, इतने सारे टेररिज्म, इलीगल आर्टिकल्स, फिशिंग, पोर्नोग्राफी हो गया, आईपीएल हो गया, आपका फोर्जरी हो गया, ये सारे उसमें आते हैं, ये सारे साइबर क्राइम्स में आते हैं, है ना. ऐसा अगर कोई भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो ये साइबर क्राइम्स के रिलेटेड आता है. साइबर क्राइम्स में क्या क्या है, हैकिंग है, कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट का सिस्टम जो है वो होता है, उसमें पासवर्ड स्निपर होता है ना, किसी ने किसी का ले लिया, पता चल गया, उसके अंदर वो जाके सारी चीजें कर रहा है. स्नूपिंग में होता है, लेकिन व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर प्राइवेसी होती है. आपने देखा होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, या आजकल बिलिंग में भी उसमें क्लियर कट लिखा गया रहता है ना, सारी चीजें. देन साइबर पोर्नोग्राफी तो बहुत, आजकल तो हम नेटफ्लिक्स वगैरह तो ओपन सारी चीजें ओपन हो गई है. ऑनलाइन हरासमेंट करना, राइट, साइबर स्टॉकिंग करना. आप पढ़े लिखे हैं और आपको पता है साइबर लॉ आपने सीखा है, आपको पता है कि ये सारी चीजें, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कोई आपको जबरदस्ती इस चीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज अ साइबर क्राइम. हरासमेंट, साइबर क्राइम, हैकिंग कर रहा है आपका फोन. हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है, अरे हाँ ये देख मेरा मोबाइल देख, वो एक हाथ होशियार होगा ना, वो क्या करेंगे, फट से आपके सारे डिटेल्स ले लेगा, क्योंकि आजकल आपके मोबाइल में सारी चीजें अवेलेबल है. एवरीथिंग जिसे आप हैक करना है ना, वो फटाफट ले मोबाइल से, आपको पता भी नहीं. डोंट शेयर, उसमें पासवर्ड वगैरह लगा कर रखिए, किसी को भी मत शेयर कीजिए, ठीक है. सिर्फ अपनी फैमिली के मेंबर्स को जो ट्रस्ट वर्दी हो. जो हमने ये भी देखा है कि फैमिली में भी ये सारे फ्रॉड्स बहुत होते हैं, तो जो भी बंदा ऐसा जो मतलब ट्रस्टफुल हो, जो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, उसे ही डिटेल्स दीजिए, सभी को डिटेल्स मत शेयर करिए. अभी ये जो आईटी एक्ट आया है, ये 2000 में आया, तो ये कैसे आया और क्यों आया. सो इट इज द फर्स्ट साइबर लॉ इन इंडिया एंड एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन 9th June 2000. Okay, so it is mainly based on the यूनाइटेड नेशन कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब
ऑल ओवर यूनिवर्स में इसको स्प्रेड किया गया है कि कहीं पे भी, इंडिया में आप कहीं भी हो, अगर आप कुछ भी करते हो तो आपको आप इजीली कैच किए जाओगे, क्योंकि कैमरा है ना। आजकल डिजिटलाइजेशन तो कर दिया, लेकिन उस पर पूरा फोर्स काम कर रहा है, पूरा चेकिंग। पहले तो भी नहीं होता था, आपको आजकल विद इन अ मैसेज आ जाता है, विद इन अ ओटीपी मिल जाता है। सारी चीजें क्यों हो रही है? ये डिजिटलाइजेशन की वजह से सिस्टम अपडेट हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। लेकिन ये यूजफुल तभी होगी जब आप इसका अच्छा बेनिफिट लेंगे, है ना, उसको अच्छे से यूज करेंगे, अच्छे काम के लिए यूज करेंगे। सो टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, लीगल ट्रांजैक्शंस जो है, सो कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा interchange and other means of electronic communications commonly referred to as electronic commerce। हम लोग आजकल पूरा डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। आजकल वो फोन पे में भी अगर हम दिखाते हैं कि देख बाबा इतने पेमेंट हम कर रहे हैं, उसको भी वहां से मैसेज आ जाता है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, अवेयरनेस के लिए कि ये होनी ही चाहिए। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक with government agencies and e-payments, राइट। आपको तो पता है आपके ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है। हेलो, यस मैम। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ या क्या पढ़ा रही हूँ? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोलिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आप साइन करते हो ना, तो आपका साइन भी आजकल स्कैन हो जाता है। तो साइन करते वक्त भी ध्यान से साइन करिए, डिजिटल साइन भी आप ध्यान से करिए। आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी किसी के किसी और के नाम से हो गई, वो भी आपके साइन के साथ। गॉट इट? सो बी अवेयर, 10 बार पूछिए शांति से। पैसे का जो काम है वो आराम से बैठ के करिए, ऐसे घाई घाई में मत करिए। डिसीजंस लेते वक्त थोड़ा सा सोच के लीजिए। To amend the Indian Penal Code, India Evidence Act 1872, the Bankers Book Evidence Act 1981, Reserve Bank of India 1934, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट्स है ये इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत होते हैं, जो एविडेंस एक्ट है उसके थ्रू, और इसमें एविडेंस बैंक का भी लगता है जो भारतीय एक्ट ने 1934 में बनाया था। Excuse me. Now the structure of the IT Act 2000. What is the structure? Excuse me. The Information Technology Act 2000 consists of what? 13 chapters. How many chapters are there? 13 chapters divided into 94 sections. Chapter 1 to chapter 8 are mostly digital signature related, ठीक है। इसमें आईटी एक्ट में जो आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 है वो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, एन नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम उसमें आते हैं, और उसमें कौन से सेक्शंस लगेंगे। 3 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, अमाउंट भी मैटर करता है उसमें। सो पहले चैप्टर से लेके मतलब 13 जो चैप्टर्स है टोटल, वो 94 सेक्शंस के अंडर में आते हैं, जिसमें 94 सेक्शंस में 1 to 8 सेक्शंस जो है वो डिजिटल सिग्नेचर के रिलेटेड है। अब चैप्टर 9 to 12 जो भी होगा आर रिगार्डिंग पेनल्टीज ऑफेंस एक्ट। बाकी के जो है वो उसमें पेनल्टी कितनी लगेगी, ठीक है, उसमें आपका ऑफेंस क्या है, क्राइम क्या है, क्या किया है, उसमें क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो आपके चैप्टर 9 टू अदर्स में आता है। एंड इसमें 4 शेड्यूल्स भी दिए हैं, डिफरेंट काइंड के शेड्यूल्स। शेड्यूल मीन्स जैसे अमाउंट वाइज 5 लाख टू 10 लाख इतना, उसके अबव है तो इतना, उससे भी ज्यादा है तो इतना, ऐसे शेड्यूल्स दिए हुए हैं। which are consequential amendments in respect of certain other acts। और उसमें फिर consequential अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, इसमें कुछ तो अमेंड करना चाहिए, कुछ तो चेंज करना चाहिए, तो वो भी इसमें होता है। किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस? अभी तक जो पढ़ाया कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? यस, कम ऑन, पिक अप।
समझ में आ रहा है सर? हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Thank you. Next. अब इसमें आपको chapters दिए हुए हैं, ठीक है? कौन से चैप्टर में क्या, जैसे आईटी एक्ट 2000 में चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी पे है, जैसे सिंपल काइंड्स ऑफ कंप्लेंट्स, है ना? देन आपका है डिजिटल सिग्नेचर्स, चैप्टर 2। चैप्टर 3 है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, उससे अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं तो वहां पे जाके कंप्लेंट, जैसे लोग बैंक में जाते हैं कैशियर के काउंटर में या कैश जमा करने, तो उसके इंक्वायरी काउंटर में अलग होता है, लोन काउंटर अलग होता है, राइट? फिक्स डिपॉजिट का काउंटर। अगर आपका प्रिलिमिनरी केस है, मतलब सिंपल सा, तो आपको प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 जाके डिटेल पढ़ के उसको सॉर्ट आउट करना है। चैप्टर 2 रिलेटेड है डिजिटल, अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर में किसी ने फ्रॉड किया तो चैप्टर 2 यूज करना है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब आपको आपने कहीं पैसे ट्रांसफर किए हैं इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, तो उसके लिए आपको चैप्टर 3 यूज करना है। चैप्टर 4 में आर्बिट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आपने अगर रिकॉर्ड्स को इधर उधर किया है या है डिस्पैच किया है, या जैसे आपने देखा होगा ना, सारे नोट्स भी आजकल कॉपी रहते हैं ना यूट्यूब पे, और इस अगर आप डाउनलोड कॉपीराइट दिया गया है, उसमें आपका नाम एड्रेस सारी डिटेल भरने के बाद वो आपको 8 दिन के बाद आएगा, या फिर कहीं वो बोलता है पे फॉर इट, राइट? तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स किसी ने बनाया हुआ है, अगर कोई कॉपी पेस्ट करेगा तो उसका डबल कॉपी बन जाएगा, तो उसका नहीं बिकेगा। Sorry, don't know what happened, actually connection is not doing proper, therefore it happened. So chapter 5, चैप्टर 5 जो है वो आपका सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स। आपको आपकी सिग्नेचर कैसे सिक्योर करनी है, कैसे आपके रिकॉर्ड्स सिक्योर करने हैं, है ना? तो वो अगर आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे साइबर लॉ में तो आपको पता चलेगा। साइबर लॉ का चैप्टर 7 जो है 6 जो है वो रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जितनी भी अथॉरिटी है ना एकेडमिक्स में, जो तो डिटेल्स होती है ना सिक्योर करते हैं। जैसे हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट में हम लोग हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम, लीगल डिटेल्स सारे उसमें डिटेल्स डालेंगे, है ना? और उसका श्योर ऑफ देंगे कि यस, तो वहाँ पे सर्च करने से आपको, हम जैसे हम लोग भी एन नंबर ऑफ वेबसाइट ओपन करके सारा डेटा लेते हैं, तो वो सिक्योर्ड है। अगर जैसे हैक हो जाता है कंप्यूटर, तो कुछ भी मतलब कुछ मतलब एकदम कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है, तो वैसे मतलब सिक्योर्ड है। आज डेट में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी वेबसाइट देख रहे हैं वो सिक्योर्ड है, बिकॉज ऑफ साइबर लॉ, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, राइट? सो चैप्टर 7 जो है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स है, मतलब आपने डिजिटल सिग्नेचर बना लिया, उसका उसमें आपने डिटेल्स दिए कि आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक जैसा आपने अपलोड किया है वैसा वहां पे दिखने लगता है, राइट? देन चैप्टर 8 जो है वो आपका है ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स, मतलब जो आपने सर्विसेज से ड्यूटीज प्रोवाइड की है रिगार्डिंग, अगर उसमें भी कुछ होता है तो हमें चैप्टर 8 पढ़ना है। देन पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशंस, उसके बाद आता है आपका 9th सेक्शन, पेनल्टीज क्या क्या लगेगी, लेट हुआ तो क्या, अगर क्राइम हुआ तो क्या पेनल्टीज लगेगी, ठीक है? अगर वो दिन में सॉर्ट आउट नहीं किया तो कितनी पेनल्टीज लगेगी, सारी पेनल्टीज इसमें है। साइबर में जो दिया है साइबर रेगुलेशन एंड एक्टिवेटेड ट्रिब्यूनल्स, उसके थ्रू आपको उसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? देन ऑफेंसेस है, ऑफेंसेस में एन नंबर ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, उसके लिए कौन से इसके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स है वो आपको चैप्टर 12 में देखने को मिलेगी। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स नॉट टू बी लाइबल इन सर्टन केस, है ना? नेटवर्क जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, जैसे ये बैड बाउंड जितने भी है वो इसमें नहीं आता है, और अगर आता भी है तो वो उसके पेमेंट करने को। मिसलेनियस मतलब चिल्लर छोटे मोटे जो होते हैं रिगार्डिंग दिस, वो मिसलेनियस में आता है। सो शेड्यूल क्या है, आईटी एक्ट का शेड्यूल क्या है? 1 सेकेंड।
सॉरी सो शेड्यूल ऑफ आईटी एक्ट 2000 में शेड्यूल नंबर 1 अमेंडमेंट्स टू द इंडियन पैनल कोड, इसमें क्या है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं इंडियन पैनल कोड के थ्रू। शेड्यूल 2 में अमेंडमेंट्स टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना, अगर एविडेंस में कुछ हुआ है तो उसमें जाके आपको अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो शेड्यूल्स भी होते हैं, जैसे क्लॉज 1 ए बी, फिर उसमें शॉर्ट ए, तो इस तरह से वो एक्ट पढ़ा जाता है, इस तरह से वो अमेंडमेंट, जैसे अमेंडमेंट भी करी है, जैसे अगर एक कोई क्लॉज है मान लीजिए, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैसे बताऊं मैं कि पनिशमेंट एक्ट है इंडियन पेनल कोड 20 ए, कैपिटल ए, एंड उसके इसमें लिखा जाएगा ब्रैकेट में रोमन में 1, ठीक है। तो इसमें फिर लगा मुझे कि नहीं, इसमें तो ये आ ही नहीं रहा है, इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। जैसे इसमें मैंने पहले इसमें लिखा था पनिशमेंट में कि 5 इयर्स का पनिशमेंट रहेगा, 50,000 पे करना है, लेकिन उस पनिशमेंट में अगर कुछ ज्यादा हेवी यूज है, लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, मुझे अगर उसकी पनिशमेंट बढ़ानी है या फिर कम करनी है, तो मैं उसे अमेंडमेंट करके उसके नीचे आज का डेट, आज का ईयर डालूंगी, और उसमें क्या अमेंडमेंट चाहिए मुझे वो करके फिर उसके नीचे जैसे मैंने लिखा कि 490 या 420 कैपिटल ए, फिर रोमन में 1, तो उसके पीछे मैं कुछ तो भी और साइन दूंगी, या स्मॉल ए बी या कैपिटल रोमन में, ऐसा करके, तो वो अमेंडमेंट हुआ। और वो कब से एप्लीकेबल करना है वो तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, राइट। तो इस तरह से हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो होता ही है, हर साल होता है, क्योंकि आपने टैक्सेशन में देखा है कि एवरी ईयर नोटिफिकेशन चेंज होते हैं, एवरी ईयर में सारे टैक्सेस चेंज होते हैं, है ना। तो ये सारी अमेंडमेंट्स चलती रहती है हमारे। और वैसे भी इंडिया है तो इंडिया में पनिशमेंट वैसे भी कम ही है ना, माफ कर देते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, विजय माल्या है ना, इतना पैसा खाया ना, आजा आजा। लंदन की गवर्नमेंट ने उसे शरण दे दिया, भाई आजा खा पी हमारे यहाँ, तेरे पास दिमाग है, हमको बता, हम लोग फ्रॉड करेंगे, तू अब यहाँ पे बैठ जा, है कि नहीं। तो इंडिया में पनिशमेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और मतलब हमेशा चेंज होता है बट अप्लीकेबल नहीं होता, है ना। तो इस तरह के ऐसे लोग हैं, नीरव मोदी है, और भी इतने सारे लोग हैं जो लॉयर्स लोग हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स, और ये सिर्फ अकेला पर्सन नहीं करता है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। आई एम सॉरी कि मुझे ये सारी बताना नहीं चाहिए, बट ऑफेंस और इसकी बात आ गई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये होता है, और ये लोग ही चेंज करते रहते हैं, है ना। अभी गवर्नमेंट जो भी है, आपको पता ही है क्या हो रहा है हमारे साथ, कैसा हो रहा है ना, लेकिन हम लोग आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि हम भी क्या है, फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे मम्मी पापा ने किया, हमारे दादाजी ने किया, वही हम रूल फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं। तो शेड्यूल 2 में एविडेंस एक्ट में ये सारी चीजें हो रही है। शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट्स टू बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, अगर इस शेड्यूल 3 में अगर कुछ लग रहा है उनको कि ये सारी चेंजेस है, तो वो वहां पे जाके चेंजेस करेंगे, राइट। और शेड्यूल 4 में क्या है कि अमेंडमेंट्स टू द बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है, जो आरबीआई का एक्ट है, उसमें भी अगर कुछ अमेंडमेंट्स करनी है तो वो शेड्यूल 4 में जाके आपको करना होगा, या फिर आपको सजेस्ट करना होगा कि ये चेंजेस इसमें होनी चाहिए। देन चैप्टर 4 जो है वो एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बहुत सारे होते हैं ना, इधर की उधर चीजें, इधर से उधर पेन ड्राइव, आपने सारी मूवीज देखी है, जो मूवीज में दिखाते हैं वो सब आजकल रियल में भी हो रहा है। सो एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट्स हो गया, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आजकल सब डिजिटाइजेशन हो गया, हम लोग यहाँ से पेमेंट करते हैं, सामने वाले को रिसिप्ट दे देते हैं, देख भाई मैंने पेमेंट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, एन नंबर ऑफ एवरीथिंग हो गया, एवरीथिंग, सारा रिकॉर्ड्स हमारे पास रहता है, और सामने वाले के पास भी रहता है, और बैंक में भी रहता है ट्रांजैक्शन। थर्ड पर्सन ऑल्सो चेक आउट अस कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअल में, मतलब एविडेंस बहुत सारे होते हैं, तो एविडेंस एक्ट के थ्रू भी अगर वो एविडेंस नहीं मिलता है, कोई डिलीट भी कर देता है, तो किसी ना किसी के साथ मिल ही जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं तो सेव रहेगा उस डेट में, ठीक है। सो चैप्टर भी जो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है, जो डिजिटल सिग्नेचर्स है वो कैसी है, सिक्योर होती है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योरिटी प्रोसीजर। उसमें एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप करना होता है, अगर आपने कभी बनाई होगी तो, और उसमें आपके सारे डिटेल्स देने के बाद ही वो आपको
डिजिटल सिग्नेचर्स देता है, अथॉरिटी रहती है उसमें। देन रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, अगर आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी चाहिए तो उसके भी आपको डिटेल्स देने होंगे। वो वेरीफाई करता है कि यस ये पर्सन वही है और ये पर्सन का यही काम है, तब जाके वो आपको प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज ऐसे किसी को नहीं करेगा। चेकआउट होता है, उसके लिए अथॉरिटी लगती है, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स, ये सारी चीजें इसमें होती है कि अपॉइंटमेंट्स होती है ऑफिसर्स की, कंट्रोलर की फंक्शंस क्या है कंट्रोलर के वो पता चलता है। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसमें फॉरेन की कितनी अथॉरिटीज है। अभी हम लोग देखते हैं कि एन नंबर ऑफ डिजिटल कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग चल रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि आप ऑनलाइन, अभी तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करके भी कोर्सेज ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अथॉरिटी सही है। हम लोग वेबसाइट में जाके उनका सारा देखते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस, उसका सारा पोर्टफोलियो, उसका ब्रोशर, एवरीथिंग वी हैव चेक आउट एंड आफ्टर दैट वी विल डिसाइड टू डू और नॉट। गॉट इट? और जब हमें लगता है कि इसका है, इसको फॉलोअर्स है, इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका ग्रुप बन रहा है, देन विल ट्रस्ट एंड इन्वॉल्व इट, अदरवाइज वी नॉट। सो ये सारा अवेयरनेस आप पे होना चाहिए, किसी के बताने पे मत जाइए। यू शुड चेक योरसेल्फ, आप खुद रिस्क लीजिए चेकिंग की, और उसके बाद उस चीज को आप करिए, ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, कंट्रोलर टू एक्ट एज अ रिपोजिटरी, लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसके बाद सारी चीजें होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट आता है, अदरवाइज नहीं। और उसमें भी देखिए, आपने अभी इतनी सारी एन नंबर ऑफ टेस्ट दिए होंगे गूगल फॉर्म में भी, अगर आप सर्टिफिकेट, अदरवाइज नहीं। तो उन्होंने वैसा सेटिंग वैसा बना के रखा है ना उसमें सिग्नेचर्स का, भाई ये बंदा पास हो गया, इसको सर्टिफिकेट, तो विद इन अ मिनट में वो सारी चीजें हो जाती है। एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंस, आपको अगर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस करना है वो भी आप इसमें जाके कर सकते हैं। रिन्यूअल करना है तो चैप्टर 6 को आपको फॉलो करना है, प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, देन suspension of license, notice of suspension or revocations of license, power to delegate, power to investigate contraventions, everything ये चैप्टर 6 में आता है, ठीक है। उसके बाद और क्या आता है? एक्सेस टू कंप्यूटर एंड डाटा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ एक्ट, डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, सरेंडर ऑफ लाइसेंस, डिस्क्लोजर्स, जो भी आपको ये करना है वो चैप्टर 6 के अंदर ही आएगा, और उसी में जाके आपको क्लिक करना है। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करते हैं तो वो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करता है, तो उसमें उन्होंने वो सारी पॉलिसी डाली हुई है ना, जब तक आप उसे रीड नहीं करोगे, ओके नहीं करोगे, वहां पे साइन नहीं करोगे या फिर क्लिक नहीं करोगे, तो वो आगे नहीं जाएगा। आपको डिटेल भर के ही वो आगे आगे आपको दिखाते जाएगा, या फिर वो तो वो उस चैप्टर में आता है ना, वो आपको पहले ही बताएंगे कि इसमें जाके आपको स्टडी करना है। हम लोग एक केस स्टडी देखते हैं, शॉर्ट केस स्टडी, ये है साइबर लोटो केस। सो इन आंध्र प्रदेश में वन कोला मोहन क्रिएटेड अ वेबसाइट and an email address on the internet with the address of eurolottery@usa.net, ठीक है। So which shows his own name as a beneficiary of 12.5 million pound in euro lottery, जो अभी नेहार ने बताया था ना। So after getting confirmation with the email address, a Telugu newspaper published this news, right? He gathered huge sums from the public as well as from some banks. The fraud came to light only when a check amounting rupees 1.73 million discounted by him with Andhra Bank got dishonored. Got it? समझ में आया क्या केस? Yes or no? रीड करिए फिर से। समझ में आया क्या केस? हेलो, केस समझ में आया क्या? Yes, ma'am. Kind of. The first case convicted under IT 2000, the case related to posting of defamatory and annoying message about a divorcee woman in the Yahoo message group. In February 2004, police
traced the accused to Mumbai and arrested him. The accused was a known family friend victim and was reportedly interested in marrying her for the offense under section 6 go for 2 years and pay fine for ₹4,000. ठीक है, तो इस तरह से भी फ्रॉड होते हैं डिवोर्सी वुमन के साथ। उसने ऐसा किया, उसको लालच दिया और उसने, और पता चला कि उसके फैमिली का, मतलब ये सारी चीजें मैंने पहले ही बताया कि जो भी विक्टिम्स होते हैं वो हमें फॉलो करते हैं और उसके थ्रू ही वो सब कुछ होता है। ऐसा कोई भी अनजान आदमी किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। सो बी अवेयर अबाउट इट। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपकी सारी डिटेल्स, आपके शेयर्स कलीग को भी मत करिए। जो आपको घर में आपके पेरेंट्स को बताइए, क्योंकि वो तो आपके सब कुछ है, तो वो लोग शेयर कर सकते हैं, मतलब उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन आप बाकी किसी के साथ भी शेयर मत करिए। अभी इनको पता चला कि उनका खुद का फ्रेंड ही था, है ना। सो ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। एडवांटेज ऑफ साइबर लॉ। साइबर लॉस के क्या एडवांटेजेस है? सो कंपनी शैल नाउ बी एबल टू कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूजिंग द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय एक्ट। You should mention your name, address, proper address, your phone number, means your parents phone number. आपने देखा होगा कि एडमिशंस में भी हम लोग सारी एकेडमिक्स, आपके पेरेंट्स के सारा डिटेल्स लेते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, पूरा लीगली चेक करते हैं, उसको वैलिड कब तक है वो देखते हैं, आफ्टर दैट वो सक्सेस होता है। सो डिजिटल सिग्नेचर्स हैव बीन गिवन लीगल वैलिडिटी एंड सैंक्शन्ड इन द एक्ट। उसके लिए भी आपको वैलिडिटी चाहिए। The act means IT Act also address the important issues of security which are no critical to the success of electronic transactions. है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में भी आपको बहुत ही अवेयर रह के करना है। अंडर द IT Act 2000 it shall now be possible for corporate to have a statutory remedy in case if anyone break into their computer systems or hack. So be aware to share. इसकी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स भी है कि मोर साइबर क्राइम पुलिस सेल्स सेट अप अक्रॉस द कंट्री। सारी यहाँ पे बैठी हुई है एंड वो चेक कर रहे हैं आप किससे बात कर रहे हो, है ना, आप कितनी देर किससे बात कर रहे हो, एवरीथिंग। आपका व्हाट्सएप भी चेक हो रहा है रोज डेली बेसिस पे, आपके मैसेजेस सारे चेक हो रहे हैं, आप किसको क्या मैसेज बोल रहे हो, किसको कितनी गाली दे रहे, एवरीथिंग सब रिकॉर्ड हो रहा है। और कोई पर्सन है वो सारी चीजें आपकी रोज पढ़ रहा है और आप क्या बोल रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो, सारी वो समझ रहा है, सब रिकॉर्ड है। ठीक है, सो इफेक्टिव ई सर्विलियंस। ठीक है, ये अभी बहुत हो गया है। So websites aid in creating awareness and encouraging reporting of cyber crime cases and specialized training of forensic investigators and experts. ये लोग सारे वहाँ पे experts बैठे हुए हैं ये सब चेक करने के लिए और ये सारी चीजों को, फ्रॉड को पकड़ने के लिए ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, experts. So active coordination between police and other law enforcement agencies and authorities. So आपके जितने भी मतलब पुलिस लोग चीजें होती है तो आपको अवेयर रहना है। जब मुंबई में तो ऑलवेज हाई अलर्ट रहता ही है, तो वो लोग बहुत अवेयर है, वो लाइव तो बहुत आपको क्या करना है क्या नहीं, इवन छोटे बच्चों को भी पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो दे रियली अलर्ट अबाउट इट, गॉट इट। सो इसमें सजेशंस ऐसे देने हैं, मतलब ये चैप्टर में कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिलता है हमको, क्योंकि ये सारी चीजें जो है साइबर है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, अगर कहीं पे भी हो जाता है तो उनका भी कोऑपरेशन हमें मिलता है। म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज, है ना, कंट्रीज, क्योंकि हर कंट्री को एक का सपोर्ट तो करना ही है, क्योंकि खतरा तो है। जैसे अभी हम लोग वॉर देख ही रहे हैं, हमको पता है किसको क्या है, तो इंटरनली मतलब जितनी भी कंट्रीज है वो एक में को सपोर्ट कर रही है कि ऐसा हुआ तो क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दैट इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे हमने वैक्सीन का देखा था कहीं हो गया, तो अब इंडिया में सारी जगह वो हो गया है वैक्सीनेशन, और उसके बाद हमें बहुत ही कम केसेस देख रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज, डिपोर्टेशन ऑफ क्रिमिनल्स, है ना, हम लोग क्रिमिनल्स पे क्या कर रहे हैं अभी, कंट्रोल कर रहे हैं। वो इजीली अगर कर भी लेता है तो इजीली कैच हो जाता है। एजुकेट टू द मैसेज, हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं इसके लिए, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम, ट्रेनिंग एंड एजुकेटिंग policemen and more
stringent norms. Every time मुझे तो हर रोज मैसेज आता है, हर रोज कि do not share your OTP and PIN to others every day. और मैं पैनिक नहीं होती. हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जल्दी पैनिक. And thank you so much for listening me. Tomorrow we have seen same. If you have any confusion, any query, let me ask. किसी को कोई confusion है या कुछ है ऐसा जो नहीं समझा? Okay. So see you. Bye bye. Ma'am, I have Thank one you, ma'am. question. Yes. Omkar please. is sir. Ma'am, on my phone, daily or after 2 or 3 days, one message was coming like, please give a feedback about Jio services and about the Jio phone. So, ma'am, it's safe to give feedback or it's risky? One time you should give. Every time you don't give your the feedback. Okay? Every time देने की, एक बार दे दो या फिर निगलेक्ट करो. जरूरी नहीं है आपको फीडबैक देने की. लोगों Okay, को पता है, जियो कंपनी को पता है, क्योंकि जियो अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए, क्योंकि जियो ने इतना कुछ दिया, उसे फीडबैक की क्या जरूरत है? उसे तो डेली पता चल रहा है कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितना क्या कर रहा है कि नहीं? आप उसमें डिटेल डाल रहे हो, आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, गुड 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 गुड. सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ना उनका, योर एंड अदर. Yes, anyone? Anyone want to ask any question? No? Omkar, do you understand what I'm saying? Yes, ma'am. Yes. Okay.